जज थे उन्होंने रुक्माबाई को दो ऑप्शन दिए। उन्होंने कहा आइदर यू स्टे इन जेल फॉर 6 months और यू गो बैक टू योर हस्बैंड। तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। Hey guys, my name is Bipasha Saikia and I'm back with another story. और आज की जो कहानी है, it's a little different. It is not a murder mystery or a horror story, but rather it is an inspiring story of a woman who wrought her own faith and destiny. And along with that, she also changed the faith of Indian women. This is the story of Rukmabai Rawat, one of the first Indian women who got legally divorced. And also one of the first women who was practicing medicine in colonial India. So let's begin the story of Rukmabai Rawat while driving through Guwahati. Rukmabai Rawat was born in the year 1864 to Janadar Pandurk and Jayanti Bai. And उनका birth कहाँ हुआ था वो तो मेरे को कहीं ढूंढ के नहीं मिला, but one of the things that I got to know was that she lost her father at a very young age. She was just 2 years old when she lost her father, and due to this very reason, her mother also got widowed at a very young age. Now, you guys must be concerned, और concern होना भी चाहिए कि 1864 के ज़माने में कैसे ये दो औरतें सर्वाइव करेंगी, क्योंकि जयंती बाई विडो बन चुकी थी और दूसरी और रुक्माबाई was just 2 years old, so there was no way they could survive. मतलब it was 1864 when pest had more identity than a woman. So I understand why you guys are concerned. पर हमारी जो जयंती बाई है ना, she was somebody else. वो बहुत अपने समय से आगे थी and she was very intelligent also. Now, you will not find anything written about Jayanti Bai anywhere. You will not find it in the books or in the internet. ये मेरा खुद का conclusion है. While I was doing my research, मुझे जयंती बाई का एक एक्शन के बारे में पता चला और वो एक्शन जानने के वजह से I came to the conclusion that she is a very intelligent woman. Jayanti Bai was one of those people who got remarried during that period. उस जमाने में लोगों को तो remarriage समझ में ही नहीं आता था. इनफैक्ट आप एक बार अगर विडो बन गए तो विडो बन गए मतलब आपको सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा. You will have no rights at all. But on the other hand, Jayanti Bai was able to get remarried. Now it was not like something उन्होंने कुछ conspiracy करके remarriage कर दिया. The reason she was able to remarry is because she belonged to the Sutar community. और Sutar community के होने के वजह से जितने भी Brahmanical norms थे ना वो उन पे apply ही नहीं करते थे, इसलिए आसानी से उनको मैरिज करने का मौका मिल गया. अब यहाँ पर आप लोग आयरनी देख लो कि जिस चीज के वजह से शायद सोसाइटी उनको नीची नजरों से देखते थे, that you belong to a Sutar caste, उसी कास्ट के वजह से she was able to remarry, she was able to restart her life and that became a boon for her. तो जिंदगी में चीजें कब कैसे कहाँ काम आ जाए आपको समझ में नहीं आता है. जो चीज के लिए लोग शायद आपको नीची नजर से देखे वही चीज आपके लाइफ में आपका लाइफ बदल सकता है, only if you know how to use it. And Jayanti Bai was able to use it. Now you guys must be thinking कि मैंने जयंती बाई को टाइम से आगे क्यों कहा था. That is because before getting married for the second time, she transferred all the property that she had inherited from her late husband to her daughter's name. And that was a boss move in my opinion, क्योंकि आज की भी मैं अगर बात करूँ in 2025 also, a lot of the women have no idea what is their right, what are the legal consequences of it. That is why I said that she is a very intelligent woman. Now, coming back to the story how Jayanti Bai got married. How Jayanti Bai got married, that is unknown. However, the thing which is known is who she got married to. She got married to Dr. Shakharam Arjun Rawat. Now this Shakharam Arjun Rawat in today's definition, या उनको अगर कुछ term देना हो कि वो किस तरह के इंसान थे, he was a green forest. Yes, he was a green forest. मतलब उस जमाने में एक इंसान जितना progressive हो सकता है ना, उनमें वो सारी quality थे. He was a feminist, he was a reformist, he believed in women education और उसको completely support करते थे. अब क्योंकि रुक्माबाई का देख एक भी सखाराम अर्जुन रावत जी कर रहे थे, इसलिए रुक्मा was also able to pursue her education. Now this was a big thing because 1864 में लड़कियों को स्कूल का जो गेट होता है ना वो देखने के भी नसीब नहीं आता था और यहाँ पर रुक्मा was able to pursue her education. So this was a huge win-win situation. ऊपर से रुक्मा was exposed to lot of cultural and intellectual interactions क्योंकि सखाराम जी खुद एक प्रोफेसर थे, वो बोटानी पढ़ाते थे मेडिकल कॉलेज ऑफ बॉम्बे में, तो इसलिए उनके घर में बहुत ऐसे रिफॉर्मिस्ट लोगों का आना जाना था. इसलिए बचपन से ही she was very advanced in her thinking and knew कि उनको जिंदगी में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए.
लेकिन दिस वाज 1864, तो इतने आसानी से तो किसी भी औरत को हम खुश होने दे नहीं सकते, राइट? सम काइंड ऑफ ट्रॉमा हैज टू बी गिवन टू अ वुमन. तो दैट एग्जैक्ट थिंग आल्सो हैपेंड टू रुक्माबाई, अनफॉर्चुनेटली, and that was a social evil had taken place in her life. She was basically married off at the age of 11 years to a 19-year-old guy, and coincidentally that guy was the cousin of Shakharam Arjun Rawat, और उनका नाम था दादाजी भिखाजी. However, यहाँ पर एक जो अच्छी बात है ना वो ये थी कि even after marriage Rukmabai was staying at her natal house, and due to this very reason she was able to continue with her education, और वो अपना पढ़ाई लिखाई करती रही. And on the other hand, जो दादाजी भिखाजी थे, he continued living in Rukmabai's house as a घर जमाई. तो अब देख रही है छोटे से स्पेन में how many social norms they have broken already. Jayanti Bai got married for the second time. Rukmabai was studying. That was a big thing. And on the other hand, दादाजी भिखाजी was staying as a घर जमाई. मतलब आजकल के concept, आजकल का जो society है, even this society does not accept a घर जवाई. लोग उसको मतलब स्कॉर्नफुल नजरों से देखते हैं. बट इन माय ओपिनियन यार, मतलब दिस इज नॉट सच अ बैड कॉन्सेप्ट. अब आप लोग खुद सोचिए, अगर किसी घर में सिर्फ लड़कियां हैं और वो जिस परिवार में शादी कर रहे हैं, मान लीजिए वहां पर 2 या 3 लड़के हैं, तो व्हाट हार्म इट कैन कॉज कि एक लड़का आकर के अपने ससुराल में रहे. बिकॉज ऑब्वियसली लड़कियों के माँ बाप थोड़ी ना ऐसे बचपन में लाठी लेके पैदा हो जाते हैं कि हमें बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं चाहिए, है ना. बट एनीवेज, दिस इज अ टॉपिक विच नीड्स अ डिस्कशन इन अनदर वीडियो. तो हम ये किसी और दिन बात करेंगे. आज हम रुक्माबाई के बारे में बात करते हैं. नाउ दादाजी भिखाजी was staying as a घर जवाई, and that is why Rukmabai was able to continue with her education. अब सब कुछ इतना हंकी डोरी तो नहीं हो सकता है ना, मतलब इतना परफेक्ट कैसे जा सकता है कि आप अपने पिताजी के घर में हो आफ्टर मैरिज और आप पढ़ाई भी कर रहे हो, and you are a woman in 1864. मतलब that is not possible, right? तो बस यहाँ पर evil story आ जाता है दादाजी भिखाजी का. रुक्माबाई थी, she hit her adolescence, and the moment she hit her adolescence, हमारे जो दादाजी भिखाजी थे वो बिल्कुल बौखला गए. And he was like, I want to consummate the marriage. And everyone was like, what? You want to consummate the marriage? ये कैसे हो सकता है? She has hit her adolescence, true, but she is not of her age. अभी उसका उम्र नहीं हुआ है कि वो marriage consummate कर सके. But दादाजी भिखाजी was like, no, she is my wife and I want my marital rights. वो तो आप लोगों को देना ही होगा. अब शखाराम जी तो शखाराम जी है. He was a reformist, he was a feminist. वो कैसे अलाउ कर देते कि उनकी छोटी सी बच्ची को कंज्यूमेट करने का. अपना एक अल्टीमेटम दे दिया रुक्माबाई को कि देख लो भाई, तुम आइदर यू कम विथ मी, हम मैरिटल लाइफ स्टार्ट करते हैं हमारे अंकल के घर जा करके, और तुम यहीं पर ही रहो और हमारे मैरिज को खराब होने दो. अब हमारे जो सखाराम जी थे, ही वॉज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हिज डॉटर. तो उन्होंने क्लियरली जो हमारे दादाजी भिखाजी से थे उनको कहा कि देख भाई, तू मेरी बेटी से दूर रहे. एंड ही वॉज वेरी एडमेंट अबाउट इट. एंड बिकॉज ऑफ द सपोर्ट दैट शी हैड फ्रॉम सखाराम, रुक्माबाई वॉज ऑल्सो एबल टू फाइट बैक, एंड शी टोल्ड दादाजी भिखाजी दैट शी वॉन्ट्स टू स्टे एट हर फादर्स प्लेस एंड वॉन्ट टू कंटिन्यू विथ हर एजुकेशन. सो इन द मीन टाइम, दादाजी भिखाजी कहाँ गए, क्या हुआ, दैट इज अननोन. बट रुक्माबाई वॉज एबल टू कंप्लीट हर स्कूल और उन्होंने अपने स्कूलिंग खत्म कर लिया. नाउ इट इज 1885 एंड दादाजी भिखाजी आग बबूला हो गया. ही शायद से उसका ईगो भी हर्ट हो चुका था उस समय तक कि भाई हाउ कैन यू गाइज टेक अवे माई वाइफ फ्रॉम मी, मेरे भी तो कुछ हक है ना. एंड टू बी ऑनेस्ट ही वॉज नॉट रॉन्ग. तो इसलिए उन्होंने एक सूट फाइल कर दिया बॉम्बे कोर्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का. सो एक्चुअली रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स आप तब डाल सकते हो व्हेन वन ऑफ योर पार्टनर रिफ्यूजेस टू डू देयर मैरिटल ड्यूटीज एंड द कोर्ट कैन डायरेक्ट यू कि नहीं, आप जाओ अपने पार्टनर के पास एंड आपका जितना भी मैरिटल ड्यूटीज है दैट यू हैव टू कंप्लीट. सो दैट वाज द सूट दैट दादाजी भिखाजी हैड पुट अप. यहाँ पर आई डोंट वांट टू पेंट दादाजी भिखाजी एज अ बैड गाय कि ही इज द विलन. इन माय ओपिनियन ही इज नॉट अ विलन. मतलब टू बी ऑनेस्ट, he was a man who was born in the 1880s और उन्होंने यही सब चीजें देखे थे. वो उस जमाने में चाइल्ड मैरिज वाज नॉट अ क्राइम, इट वाज समथिंग वेरी कॉमन, इट वाज हैपनिंग ऑल अराउंड एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही हैड सीन. ही हैड सीन हिज मदर डिवोटिंग हर लाइफ टू हर फादर, ही हैड सीन अदर वुमेन डूइंग द सेम. तो उसको शायद से समझ में नहीं आ रहा था ये रुक्माबाई और शखाराम जी क्या कर रहे हैं. सो ही वाज अ विक्टिम ऑफ द सोशल मिलियू. बट ऑन अ डीपर इंट्रोस्पेक्शन जब मैं सोचूं, हमारे जो डॉक्टर शखाराम अर्जुन रावत जी है वो भी तो उसी सोसाइटी के थे, वो भी तो
1880s में ही जन्म हुए, उन्होंने भी सेम वही एनवायरनमेंट पाया, इनफैक्ट उससे भी पुराना जमाना वाला एनवायरनमेंट पाया दादाजी भिखाजी से भी, तो फिर वो इतने अलग क्यों हैं? द रीजन इज बिकॉज at the end of the day, everything boils down to one particular thing, and that is what decision you want to make. आप कैसा decision बनाना चाहते हो? On which side of the coin you want to stand? The society doesn't make you; it is you who make the society. And fortunately, Rukma Bai had such a man beside her who believed in making the society instead of being molded in one. Now, coming back to the suit. जब सूट कोर्ट में गई तो हमारे जो जज थे उन्होंने भी कहा कि देखो भाई, जब ये शादी हुई थी, रुकमा वाज एन इन्फेंट, उसको कोई समझ नहीं था, शी वाज नॉट एबल टू मेक एनी डिसीजन फॉर हरसेल्फ, तो ये जो मैरिज है, दिस इज अ वाइड मैरिज, तो इस मैरिज को हम नहीं मानते, एंड रुकमा वाज गिवन बैक हर फ्रीडम। पर जैसे ये चीज हुआ ना, हमारी जो सोसाइटी थी उसमें एक अपरॉयर आ गया, एंड ऑब्वियसली आएगा बिकॉज हमारी सोसाइटी के लोग भी ऐसे ही है। जब भी कुछ प्रोग्रेसिव चीज होने वाली हो, जब भी कुछ अच्छा चीज होने वाली हो ना, लोगों को बड़ा गुस्सा आता है। जब कोई बुरा चीज हो ना, तो सब लोग मुंह ऐसे बंद करके बैठ जाते हैं, बट द मोमेंट दे सी कि ऐसा कोई चीज जिसके थ्रू वो लोग गलत काम कर पा रहे थे, जिसके थ्रू उन लोगों को सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा था, वो चीज बंद करा दी गई है, तो हमारी सोसाइटी वाले बौखला जाते हैं कि आप लोग हमारी औरतों को बिगाड़ रहे हैं, आप लोगों का एजुकेशन ला करके। एंड दिस वाज एग्जैक्टली द केस दैट हैड हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि लोगों ने वो डिबेट ला दिया था कि इंग्लिश एजुकेशन ला करके हमारी औरतों को आप लोग खराब कर रहे हो, आप लोगों का ये जो इंग्लिश कल्चर है वो यहाँ पर ला रहे हो, दिस इज अ थ्रेट फॉर हिंदुइज्म, आप लोग कैसे कोई मैरिज एनल कर सकते हो। अब जब पूरा लोग पॉपुलेशन इतना ज्यादा बौखला गया, तो जो ब्रिटिश का गवर्नमेंट था वो लोग भी थोड़ा सा डर गए, मतलब ऑब्वियसली वो लोग हमको बेवकूफ बना करके बस उनको तो अपना काम निकालना था, दे आर बिजनेसमैन, तो उनको क्या मतलब हमारी सोसाइटी में प्रोग्रेस हो ना हो, दे जस्ट वांटेड टू अर्न मनी, राइट। और वो लोग क्यों हम लोगों को ऑफेंड करना चाहेंगे। तो जब उन लोगों को लगा कि भाई इस जजमेंट से तो बहुत बड़ा बवाल मच गया है, हिंदुइज्म और इंग्लिश कल्चर ये सब की बातें आ रही है, तो अब हम क्या करें। तो वो जो मैटर था उसको दोबारा उसका हियरिंग हुआ, एंड इन द ईयर 1887 उसका फाइनल वर्डिक्ट आया। इस बार जब वर्डिक्ट निकला तो दैट वाज अगेंस्ट रुकमा बाई, और जो जज थे उन्होंने रुकमा बाई को दो ऑप्शन दिए। उन्होंने कहा आइदर यू स्टे इन जेल फॉर 6 months और यू गो बैक टू योर हस्बैंड, तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो रुकमा बाई थी उन्होंने कहा, उन्होंने जो ऑप्शन था ना जेल में रहने का, उन्होंने वो चूज किया। यस, रुकमा बाई चोज टू लीव इन द जेल फॉर 6 months इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हर हस्बैंड, एंड आई मीन she is a queen, हम जो बोलते हैं ना slay queen, that is exactly what Rukma Bai was, she is the definition of slay। तो वो जेल चली गई। जब वो जेल में गई थी उस साल मना रहे थे लोग जुबली ईयर, क्वीन का एक्सेशन का 50 years हो चुका था, एंड एवरीवन वाज सेलिब्रेटिंग। रुकमा थॉट दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड आई शुड राइट टू क्वीन विक्टोरिया, सो शी रॉट अ लेटर टू क्वीन विक्टोरिया, एंड वंस क्वीन विक्टोरिया रेड दैट लेटर, तो उन्होंने ये जो पूरा जजमेंट था उसको ओवररूल कर दिया। और उतना ही नहीं, इसी जजमेंट के बाद द एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया, उसके बाद जो हमारा मैरिज का जो एज था फ्रॉम 10 years it was made to 12 years। अब ये सारा चीज रुकमा बाई ने अकेले किया, उन्होंने खुद अकेले एक लेटर लिख करके एक इतना बड़ा चेंज लाया। अब रुकमा बाई सिर्फ यही नहीं रुकी, उनको फ्रीडम मिल गया, उनका मैरिज छूट गया, उसका मतलब ये नहीं था दैट शी वाज गोइंग टू स्टॉप, शी परसूड फर्दर। और उनकी ये फर्दर की कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी गाड़ी से उतर के। So we have finally reached today's destination, और इसी के साथ मैं आज आप लोगों को आज की कहानी की आखिरी पंक्ति सुनाने के लिए भी तैयार हूँ। तो हमारी जो रुकमा बाई थी उनकी कहानी सिर्फ जेल से निकल करके ही खत्म नहीं हो गई, उनकी कहानी लोगों को इतनी इंस्पायरिंग और इतनी अच्छी लगी कि दे ऑल थॉट कि वी नीड टू डू समथिंग फॉर दिस वुमेन, राइट। तो उन्होंने सबने मिल करके उनके लिए एक फंड कलेक्ट किया ताकि वो लंदन जा करके अपना पढ़ाई खत्म कर सके। सो आफ्टर द फंड वाज कलेक्टेड शी वेंट ऑन टू लंदन टू स्टडी मेडिसिन, एंड 5 साल तक उन्होंने वहाँ पर खूब मन लगा के पढ़ाई की। नाउ वंस शी केम बैक टू इंडिया, शी जॉइंड अ हॉस्पिटल इन सूरत एज द चीफ मेडिकल ऑफिसर। फाइनली आफ्टर हर रिटायरमेंट शी सेटल्ड डाउन इन बॉम्बे, और जो बॉम्बे में जो उनका घर है दैट इज एक्चुअली अ हेरिटेज प्लेस, और वो जो घर है वो उनकी माता के नाम पे है। उस जमाने पे ही ये घर 22,500 रुपीज का बना था, एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल हाउस। रीजन इज बिकॉज जो रुकमा बाई थी उन्होंने वहाँ पर अपनी मर्जी से उस घर का जो लिविंग रूम एरिया था वहाँ पर उन्होंने खुद शादी की थी। अगर सोचे उस जमाने में एक औरत ने जेल गई, वहाँ से निकल करके उनके वजह से एक एक्ट निकला, उनके वजह से किसी
किसी लड़की का जो एज ऑफ कंसेंट था वो बढ़ा दिया गया, एंड फाइनली शी बिल्ड हर ओन हाउस एंड देन शी गॉट मैरिड इन द वेरी लिविंग रूम. एंड दैट इज व्हाई इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी I had told you that fate is not something which is predestined. It is something which we all can make by ourselves by making the most earnest choices in life. हाँ, हो सकता है कभी हमको थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा दुख कहीं ना कहीं सहना पड़े, but at the end you will write a history which nobody has heard about. So this was the story of Rukma Bai Rawat and I hope you all enjoyed watching it. And thank you so much for watching till the end. आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा. और साथ ही में अगर कुछ गलती हुई तो let me know. I'm just beginning and I'm trying to experiment with new things. तो कुछ भूल चूक हुई तो आप लोग माफ़ कीजिएगा. Thank you. Bye bye.